اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کی جانب سے جموں خطے کے کئی علاقوں میں آئے روز فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے قریب ضلع راجوری میں سندر بنی کے کیری بٹل سیکٹر میں بھی پاکستانی رینجرز نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان کی بلا اشتعال فائرنگ میں ایک فوجی جوان شہید ہو گیا ہے، 3 فوجی جوان زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال موٹار اور چھوٹے ہتھیاروں سے گولہ باری کی گئی۔ شہید ہوئے جوان کی شناخت 24 سالہ کرمجیت سنگھ کے طور پر کی گئی ہے، وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ ادھر زخمی جوانوں کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ 11 اپریل کو پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ریاست کی 2 نشستوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس مرحلے میں جموں اور بارامولہ پارلیمانی نشست کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتظامیہ کی طرف سے اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جموں میں نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے ریاست کے چیف الیکٹورل افسر شیلیندر کمار نے کہا کہ کمیشن پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ان 2 پارلیمانی نشستوں کے لیے لگ بھگ 30 لاکھ افراد حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ تیاری ہم لوگوں کی پارلیمنٹری الیکشنز کے لیے مکمل ہے۔ آج 18 مارچ کو 2 پارلیمنٹری کنسٹیچوئنسی کے نوٹیفیکیشنز ایشو ہوئے ہیں، جموں پارلیمنٹری کنسٹیچوئنسی اور بارامولہ پارلیمنٹری کنسٹیچوئنسی۔ چیلنجز اور جتنے بھی مینجمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان سب کو ہم نے ٹھیک سے دھیان رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے تیاری مکمل ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے پی ایم او ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے وجود میں آنے سے بی جے پی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اور ہر پارٹی کو عوام کے بیچ جانے کا حق حاصل ہے۔ جموں میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر ایک پروگرام کے دوران جتیندر سنگھ نے کہا کہ بی جے پی کسی بھی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جتیندر سنگھ نے کہا کہ وہ وقت چلا گیا جب لوگ اپنے بزرگوں کے نام پر ووٹ مانگا کرتے تھے۔ مرکزی وزیر نے فاروق عبداللہ کی حالیہ بیان بازی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ این سی صدر کو اپنے آپ میں خطرہ نظر آ رہا ہے۔ جتیندر سنگھ نے کہا کہ ایئر اسٹرائیک سے دہشت گردوں کو کم اور کشمیری لیڈروں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سرحد پر منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ سنگھ نے کہا کہ بی جے پی وکاس کے نعرے پر ہی چناو میدان میں اتری ہے۔ آتنکی کو آتنکی کہنے کا جن میں نہ ساہس ہے نہ نشٹا ہے، وہ یدی ہمیں نصیحت دیتے ہیں تو اس کی کتنی وشوسنییتا ہے یہ میڈیا متر اس کا فیصلہ کریں۔ پلوامہ کے حادثے کے بعد ان کشمیر کیندرت نیتاؤں میں سے کسی ایک نے بھی سیدھا نہ جیش محمد کا نام لیا نہ پاکستان کا نام لیا، بڑے فلسفانہ بیان دے کر کے آپ کے ریکارڈ میں اپنے آپ نام کو شامل کرنے کا پریاس کیا کہ وائلنس اینی ویئر از بیڈ، وائلنس نتھنگ ٹو ڈو ود سویلائز سوسائٹی۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یدی ہم آتنک کے خلاف اس یدھ میں ایمانداری سے جٹے ہیں مودی جی کے پیچھے تو وی شوڈ ہیو دی کریج اینڈ کنوکشن ٹو نیم اینڈ شیم دی ٹیررسٹ اینڈ دی ٹیررسٹ سپورٹنگ آرگنائزیشنز وداؤٹ ایمبیگوٹی۔ وہ کچھ سمے سے اس پرکار کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو خود اپنے آپ میں خطرہ نظر آ رہا ہے، اور کبھی کبھی مانو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایئر اسٹرائک ہوئی ہے اس کا آگھات آتنکیوں کو کم پہنچا اور ان کشمیر وادی نیتاؤں کو زیادہ پہنچا۔ 2019 کے بھارت میں ونشواد کا کوئی استھان نہیں، کوئی بھی راجنیتک دل ہو، کیونکہ یہ تیسری پیڑھی ہے آزادی کے بعد، 1990 کی پیڑھی، یہ پچھلا بیگیج کیری نہیں کر رہے۔ وکاس کے مدعے، پردھان منتری شری نریندر مودی کے نیترتو میں پچھلے 5 ورشوں میں ایک نئے قسم کی وکاس یاترا کا پرارمبھ ہوا ہے۔ نیشنل کانفرنس پارلیمانی گروپ کی ایک اہم میٹنگ سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر جاری ہے۔ پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ لوک سبھا انتخابات کی حکمت عملی اور امیدواروں کے تعلق سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں کانگریس سے اتحاد کے تعلق سے بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ سیٹوں کی تقسیم کو لے کر این سی اور کانگریس کے بیچ ابھی بھی اختلافات برقرار ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی پر پابندی عائد کرنا کسی میچ فکسنگ سے کم نہیں لگ رہا ہے۔ انہوں نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے گرفتاری سے متعلق دیے گئے بیان کو سیاسی ڈرامہ قرار دیا۔ عمر عبداللہ دمہال حاجی پورہ کولگام میں مرحوم اسپیکر ولی محمد اتو کی برسی پر پارٹی لیڈران اور ورکروں سے خطاب کر رہے تھے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ محبوبہ مفتی کو آج سیکیورٹی فورسز کی مبینہ زیادتیوں کی بات کرنے سے قبل اپنا دور یاد کرنا چاہیے۔ علی محمد ساگر، سکینہ اتو، ڈاکٹر بشیر ویری، عبد المجید لارمی، عمران نبی ڈار، الطاف کلو، مبارک گل، نذیر گریزی، پیر محمد حسین اور دیگر لیڈران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے کہ میری گرفتاری ہوگی تو ہونے دو،
यहां गिरफ्तारी किस बात पे? या तो ये अंदर अंदर से आपने कोई फिक्स्ड मैच चलाया है, जिस तरह होता है ना आईपीएल में वक्तन फवक्तन ये इल्जाम लगता है कि ना यहां पे मैच फिक्स हुआ है। कहीं ये जमात इस्लामी का बैन भी मुझे लगता है ये अंदर अंदर से मैच फिक्सिंग ही है। पीडीपी के सदर साहिबा कहती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वालों की तरफ से सख्ती नहीं होनी चाहिए। जब 2017 में एक वोटर नौजवान मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आर्मी की जीप के सामने बांध के 10-10 गांव से घुमाया गया, तब कहां थी आप? इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकज को निशाना बनाते हुए कहा कि वो वादी में वोट को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है और नई सियासी जमातों का वजूद अमल में ला रहा है। कि मुझे अजीब लगता है कि नई पार्टियां जो हैं वो सिर्फ कश्मीर में बनती हैं, जम्मू में आपको कोई नई पार्टी नहीं दिखती। मुझे लगता है सालों साल हो गए जबकि जम्मू में कोई नई पार्टी बनी हो, लेह लद्दाख में आपको कोई नई पार्टी नहीं दिखती। लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जबकि 3-4 नई पार्टियां जो हैं उभर के सामने नहीं आती। मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये एक साजिश के तहत यहाँ के वोटों को बांटने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी आवाज जो है वो बिखर जाए और हम कमजोर हो जाएं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला उनके मुकाबले में उठने वाले हर जमात और लीडर को दिल्ली की पैदावार समझते हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या कश्मीरी सिर्फ और सिर्फ उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को इख्तिदार सौंपने के लिए पैदा हुए हैं। इन बातों का इजहार सज्जाद गनी लोन ने आज हंदवाड़ा के मागाम ब्लॉक के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। लोन का कहना था कि उमर अब्दुल्ला मासूम नहीं है, बल्कि इस जमात के दौर इख्तिदार में कत्ल भी हुए और रियासत के तशख्खुस को नुकसान भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। उन्होंने कहा कि शाह फैसल उनकी जमात में चले जाते तो वो साफ सुथरे होते, लेकिन अब अलग पार्टी बनाई तो दिल्ली की पैदावार हो गए। साहब हैं वो बेसिकली अपने दिमाग का इलाज करवा ले। ये क्या पागलपंथी है? वो छोटे बच्चे की तरह जिसका कोई खिलौना ले लिया होता है वैसे रो रहे हैं। क्या उसी को रखे? महाराजा हरि सिंह के बाद अब हमने उसको देना है कि वो कत्ल भी करे, लोगों को मरवाए, जैसे 2010 में मरवाया वालिद साहब के, उनने 96 से 2002 तक मारा, 87 की चोरी की, दफा 370 का इरोजन किया। लेकिन नहीं, कोई और पार्टी नहीं होनी चाहिए। फिर कौन होना चाहिए? वही होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, उमर अब्दुल्ला इनोसेंट नहीं है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। उसको पता है कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जब किसी पर ये लेबल लगाई जाती है उसके खतरात कितने बढ़ते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यहां कुछ और नए लोग भी आए हैं, वो 2-2 PSO लेकर घूमते हैं। बाप और बेटे के दोनों के बीच में 600-700 बंदा इनको सिक्योरिटी गार्ड कर रहा होता है, इनको, इनकी फैमिलियों को। ये टोटल कोल्ड ब्लडेड व्हाइट कॉलर किलर्स बन गए हैं। क्योंकि कश्मीर में हुआ क्या है पिछले 30 साल से? किसी ने अपने बातों से लोगों को मरवा दिया है, किसी ने अपने लिखाई से लोगों को मरवा दिया है। बस यही एक रहेगा। कैसा, व्हाट डेमोक्रेसी इज टॉकिंग अबाउट? वो शाह फैसल साहब हैं, उनने नई पार्टी खोली है। पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शायद जा रहे थे, अगर वो वहां आते तो वो अल्लुल्लाह थे। अब अगर वो वहां नहीं आए तो इसलिए अब वो दिल्ली ने बनाई है। वो जाके अपने दिमाग का इलाज। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने उन खबरों की तरदीद की है जिनमें कहा गया था कि उन्होंने बारामूला पार्लिमानी नशस्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार की हिमायत करने का फैसला किया है। ताहम इंजीनियर रशीद ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ लोगों से बातचीत का अमल जारी है, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। हमारी मुख्तलिफ पार्टियों से बात चल रही है। हम सियासत में हैं, हम तो कोई सियासी नहीं है। लोगों से जब तक बात
करें तब तक कहीं बात बनती नहीं है। लेकिन हमारा यही बार बार कहना है कि AIP एक मुनफरिद जमात है जो कश्मीर मसले की बात करती है और जो ये कहती है कि कश्मीर के मसले का हल लोगों की ख्वाहिशात इसके तवारीखी पस मंज़र में निकाला जाए। लिहाजा एक बार फिर न्यूज़ 18 की वसादत से मेरी अपने लोगों से गुजारिश है, कश्मीर के लोगों से गुजारिश है कि जो कहा जा रहा है कि AIP ने NC को सपोर्ट करने का फैसला किया है, ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी तक हमने कोई फैसला नहीं लिया है और जब भी हम फैसला लेंगे वो लोगों के सामने होगा और उसमें पर्दे के पीछे कोई बात नहीं होगी और वही फैसला होगा जो लोगों की मंशा के मुताबिक होगा और जिसमें हमारी पार्टी के 11 साला मौक़िफ़ का। जिला रामबन में कांग्रेस की जानिब से एक रोजा पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कांग्रेस लीडरान ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ममलिकती वजीर बराए PMO ने खित्ता चुनाव को नजरअंदाज किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो 23 तारीख को पर्चा नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। उन्होंने अवामी मसाइल को मुल्की सतह पर नुमाइंदगी करने के लिए एक मौका देने की अपील की। उन्होंने खित्ता चुनाव में लोकसभा इलेक्शन की तशहीर के लिए रामबन की जमीन को चुनने पर फख्र की बात करार दिया। कांग्रेस प्रदेश कमेटी की वर्कर्स कन्वेंशन अटेंड करने यहाँ पे आए हैं और इसी के साथ साथ यहाँ से कैंपेन भी शुरू की है। वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा हमारा और सभी लोगों से मिलना जुलना हुआ और ये भी डिस्कशन हुई कि आगे इस कैंपेन को कैसे बढ़ाना है। हमारे यहाँ काफ़ी गौर दिया गया कि सरपंचेस और पंचेस के कहने पे जैसे वो ठीक समय हम आगे जो दूर दराज के इलाके हैं वो कैसे कवर करने हैं, कब जाना है। वसुन कुंजर में PDP का यूथ कन्वेंशन का एहतिमाम हुआ। कन्वेंशन में बारामूला कुपवाड़ा पार्लिमानी इंतखाब के PDP उम्मीदवार अब्दुल कयूम वानी, हल्का इंतखाब गुलमर्ग असेंबली इंतखाबात के लिए PDP उम्मीदवार शब्बीर अहमद वानी और PDP के रियासती यूथ सदर वहीदुर रहमान पर्रा ने शिरकत की। कन्वेंशन में सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। वानी ने कहा कि उनकी पार्टी का एजेंडा वादी में कत्ल गारतगरी को बंद करना और जम्मू कश्मीर का मसले पर अमन तरीके से हल करना और तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोज के वसाइल फराहम करना है। में जाके मैं इंशाअल्लाह रहमान रियासती आवाम के तीनों खित्तों के जज्बात और एहसासात के तर्जमानी करूंगा। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और यहाँ की अलहदगी पसंद क़यादत के दरमियान बातचीत पर जोर दे दूंगा और जितने भी यहाँ ज्यादतियाँ हो रही है उन ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और तीनों खित्तों के यकसान तरक्की के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और PDP जो यहाँ की रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करती है और यहाँ के तीनों खित्तों की यकसान तरक्की के लिए कोशान है, इस पार्टी को हर सतह पर मजबूत बनाने की कोशिश करूँगा। अवामी इंसाफ पार्टी के वर्करों ने गुलाम अहमद सालूरा की क़यादत में तहसीलदार गांदरबल के मुबैना हट धर्म रवैये के खिलाफ एहतिजाज किया। एहतिजाजों ने तहसीलदार को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। एहतिजाजों के मुताबिक तहसीलदार ने सीनियर सियासी लीडर व अवामी इंसाफ पार्टी के सरबराह को भरी महफिल में शर्मिंदा किया है। इस सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में सालूरा को तहसील दफ्तर के एक मुलाजिम के साथ मुबैना बदतमीजी पर तहसीलदार से माफी मांगते देखा जा सकता है। सालूरा मुसलसल तहसीलदार से माफी मांगते नजर आए। दूसरी जानिब तहसीलदार को अपने मौक़िफ़ पर ही कायम रहते देखा गया। तहसीलदार सालूरा को तहरीरी तौर पर माफी मांगने के लिए कह रहे थे, साथ ही इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने का इंतबाह दे रहे थे। इसी दौरान बाद सियासी समाजी कारकुनों और PDP के जिला सदर बशीर मीर सालूरा की हिमायत में आगे आए और तहसीलदार के रवैये की मजम्मत की। इस वायरल वीडियो का एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने 1000 बार आपको माफ कर दीजिए, मैं पर्चा दूंगा। मैं पर्चा बड़े भाई भाई नहीं हूँ, मैं तहसीलदार हूँ, भाई नहीं हूँ। गलती होगी उसे माफ कर दीजिए। अब आपका काम है मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं पर्चा दूंगा, आप फिर जाइए कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने की जरूरत जब तक मेरा भाई यहाँ पर है। भाई नहीं हूँ, आप भाई क्यों? चलो ठीक है, मैंने गलत किया है। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनसे भी मैं माफी चाहता हूँ। कहीं और कीजिए, इनसे मैं माफी चाहता हूँ। कहीं और कीजिए। कौन होते आप इसको बोलने वाले? कौन होते आप? मैंने गलती किया है। अगर कौन होते? एक तहसीलदार साहब बात सुनिए, अगर गलती मुझसे हो गई फिर मैं ही आपको कह रहा हूँ कि मुझे गलत हो जाती है। कल आप और गलती करेंगे, कहीं और कीजिए, यहाँ नहीं। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना तब तक नहीं। मैं पर्चा दूंगा, बस मैंने मन बना दीजिए। वो आपकी जिम्मेदारी है, कल मैं आपको नहीं रोकूंगा। कल फिर और आएंगे, फिर मेरे ऑर्डरली को धमकाएंगे। जब पहली बार गलत हो गया है तो कौन गलत है? मैंने सुना ना आपका, मैंने सुना आपका, आप यही करते हैं हर ऑफिस। क्या कोई आपका अफसर मुझे यहाँ कहेगा कि मैं किसी रूल पे हूँ? नहीं, आज किया ना मेरे साथ किया। गाड़ी कैसे रोक दी? इलेक्शन ड्यूटी पे जो हो गई नहीं, जो इलेक्शन ड्यूटी पे है मुझे CO से लेके मैं बोलूँगा, मुझे पता है मैंने गलत किया है। नहीं, दरगुजर करना है। तहसीलदार साहब कैसे गांदरबल के वालिदैन होते हैं, माँ बाप होते हैं। तहसीलदार साहब एक बड़ी अफसर होता है। अभी क्यों नहीं याद रखा?
अभी क्यों नहीं आ रहा? गलत हो गया, क्यों धमका है? क्यों मेरे उस गलत हो गया मेरे ऑर्डरली को क्यों? जनाब गलत हो गया। जब मैं कहता हूं कि माफी कर दीजिए, मैंने इनसे भी कहा है ये मेरे बच्चे समान है, मैं इनसे भी कहता हूं कि माफ कर दीजिए। कोई नहीं होता है, बच्चा कोई नहीं होता, ये बच्चा कोई नहीं होता। मैं इनसे कहूंगा कि दरगुजर करके माफ कर दीजिए, आपका बड़ापन होगा अगर आप माफ कर देंगे। आपको सियासत करनी है, वो गेट से सही है, गेट से बाहर। अगर आपने गलती की, हाँ गलत, उसे मैं माफी चाहता हूँ। माफी से बढ़कर कोई चीज है सर? लिख वही दीजिए ना, लिख के। मैं आपको ये नहीं बोल रहा ना जमीन मेरे नाम कीजिए, एफिडेविट में लिख के दीजिए ये किसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया, आगे से नहीं होगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं, अगर उसमें ठंडा आप हो जाएंगे मुझे कोई एतराज नहीं है। और वो जो उनका एरोगेंसी थी तहसीलदार साहब की, वो पीक पे थी, इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये आज इनके साथ हुआ, तो कल हमारे साथ क्या होगा, आम इंसान के साथ क्या होगा, हमारी माँ बीवी के साथ क्या होगा। इसलिए हम आज यहाँ सड़कों पे आए सरपा एहतजाज करने के लिए, और हमने डिमांड की कि तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और उसके साथ जो ऑर्डरली वो मुलाजिम हैं जिन्होंने बदतमीजी की वहाँ पे, उनको वहाँ से हटाया जाए। पर तहसीलदार साहब ने लिमिट क्रॉस की, उसने सालुरा साहब को अंदर बुलाया कमरे में, और सालुरा साहब ने 100 मरतबा उसको माफी मांगी, माफी 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 माफी। उसने उसको 1 घंटे तक वहाँ पर बंद रखा। कंप्लीटली कंडेम दिस दैट दिस शुड नॉट हैपन विद एनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, विद एनी पॉलिटिकल लीडर, दिस शुड नॉट हैपन। दोनों चीज़ों को हम मजम्मत करते हैं, जो सालुरा साहब ने भी किया उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन जो तहसीलदार साहब ने भी किया वो भी बहुत गलती है उसकी। तारीखी मुगल रोड पर जिला इंतजामिया शोपियां ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। जिला शोपियां के हेरपुरा से शाहरा पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। रवां बरस पीर पंचाल पहाड़ी पर हुई भारी बर्फबारी से शाहरा को नवंबर में ही ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। हर साल तकरीबन अप्रैल से मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम किया जाता है, ताहम इस बार जिला इंतजामिया शोपियां ने मार्च में ही ये काम शुरू कर दिया है। शुरू किया है तो ये जो मुगल रोड डिवीज़न है और मैकेनिकल डिवीज़न जो होता है, ये दोनों मिलकर इसमें कर रहे हैं। तो आज हमने इसकी इब्तिदा की है और हमें उम्मीद है, क्योंकि बर्फ़ ऊपर बहुत ज़्यादा है, पीर की गली में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। पिछले अमूमन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि उतनी बर्फ़ नहीं होती थी, पर इस साल काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो इसको कंप्लीट होने में लगभग 20 दिन से 1 महीना तक लग सकता है, और हमारी कोशिश ये है कि ये दिन रात काम करके जल्दी। गुरेज और तुलेल में 9 मरीज दरमांदा होकर रह गए हैं। नामालूम वजूहात की बिना पर बंद की गई प्राइवेट फजाई सर्विस की वजह से इन मरीजों को श्रीनगर रेफर नहीं किया जा सका। गुरेज और तुलेल में पंचों और सरपंचों ने फजाई सर्विस बहाल न करने के खिलाफ एहतजाज किया। वो फजाई सर्विस बहाल करने के अलावा गुरेज के लिए टनल तामीर करने का मुतालबा कर रहे थे। बांडीपुरा गुरेज सड़क बर्फबारी के बाद काफी अरसे से बंद है। लगभग हमारे 10 साल से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें टनल चाहिए, हमें इस मुसीबत से दूर करो, मगर हमारा कोई नहीं सुनता है। हम गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, जूकम साहब से, गवर्नर साहब से, पूरी पंचायत अपील करती है इस हमारे मसले को, खुदारा हमारे मसले को। करगिल में 3 महीने की सरमाई तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुले। दुनिया के दूसरे सबसे सर्द तरीन मकाम द्रास में कई स्कूलों की इमारतों पर बर्फ जमा है। -14 डिग्री सेल्सियस में बच्चे स्कूल गए। कई मकामात पर 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। स्कूलों में पहले दिन खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस दौरान तलबा व तालिबात ने अपने तासुरात और तजुर्बात का इजहार किया। अच्छा लग रहा है कि हम 2-3 महीने के बाद अपने स्कूल में आए और अपने टीचरों से मिले, अपने दोस्तों से मिले। लंबी छुट्टियों के बाद जो है हमें अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिला। हम बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। इतनी बर्फ होने के बावजूद भी हम स्कूल आए और हम रूटीन वाइज अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 3-4 महीनों की जो लॉन्ग टर्म वेकेशंस होती है, इससे बच्चों को बड़ा सफर होना पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, LHDC करगिल से हमारी यही अपील है कि इन वेकेशंस के मामलात को, जैसे गुरेज हो, करना हो, उन इलाकों में जैसे इनको कम और तवील वक्त में रखा जाता है, इस तरह से LHDC करगिल यानी डिस्ट्रिक्ट करगिल में भी इसको बिल्कुल शॉर्ट रखा जाए। सर, आज स्कूल का पहला दिन है और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही है। फर्स्ट इंजॉयमेंट डे, तो हमें बहुत मजा आ रहा है। श्रीनगर में मैं 3 महीने बैठी, लेकिन यहाँ की जो बर्फ में जो खेलने का, एक्टिविटीज करने का जो मजा आता है वो श्रीनगर में बिल्कुल नहीं मिलता है। इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल देने की गर्ज से अनंतनाग में एक मीटिंग का एहतमाम हुआ। मीटिंग की सदारत DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने की। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO डॉक्टर नासिर ने
होम गार्ड्स, PHE, R&B और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ये जानकारी दी गई कि चंदनवाड़ी से मुकद्दस गुफा तक के लिए 32 किलोमीटर रास्ते से जल्द ही बर्फ हटाने के काम का आगाज होगा। सड़क और हट्टों की मरम्मत का काम भी हंगामी बुनियादों पर शुरू होगा। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO ने कहा कि मुकद्दस गुफा तक के लिए दीगर 5 मुतबादिल रास्तों से भी बर्फ और बर्फानी तोदे हटाने के काम का आगाज जल्द किया जाएगा। न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ लेह में पुरअमन मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने अपने हाथों में मोमबत्तियां लिए लेह गेट से जामा मस्जिद तक जुलूस निकाला। मुकर्रीन ने न्यूजीलैंड की मस्जिदों में मुसल्लियों के सफाकाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुकर्रीन ने फिरका वाराना हम आहंगी और आपसी भाईचारे के फरोग पर जोर दिया। इसमें क्रिश्चियन एसोसिएशन लेह, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोइन इस्लाम, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सरबराहान और उम्मीद और नुमाइंदों ने शिरकत की। हाल ही में न्यूजीलैंड में जो हादसा हुआ, आतंकवाद का जो हादसा हुआ, अभी मेरा समझना है कि आजकल दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के बीच में आतंक फैलाना चाहते हैं, लोगों के बीच में आतंक फैलाना चाहते हैं। ये एक बहुत बुरा काम है और एक लद्दाखी होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह की हरकतों पर हमें कॉन्डेमनेशन करना चाहिए और साथ में सबक लेके इससे हमें सबक लेके हम सबको एक साथ में किसे मिल के रहना है शांति के साथ इंसान। उधर करगिल में भी न्यूजीलैंड दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मदरसा असना अशरिया की जानिब से किए गए इस मुजाहरे में मुकर्रीन ने इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और कसूरवारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। साथ ही हकाइक का पता लगाने के लिए आलमी सतह पर जांच कराने की भी मांग की गई। कश्मीर यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज एंड रिसर्च के ज़ेर एहतमाम गांधी भवन श्रीनगर में एक रोजा सेमिनार मुनाकिद किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने इफ्तिताई सेशन की सदारत की। मुकर्रीन ने सियासी, समाजी व इक्तसादी शोबों में खवातीन की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया और इन्हें बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। प्रोफेसर तलत ने कहा कि मुल्क के दीगर इलाकों की बनिस्बत रियासत में खवातीन के हालात बेहतर हैं और यूनिवर्सिटी में भी खवातीन को यकसा मौके फराहम किए जा रहे हैं। हकूक़ बरकरार रहें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हक मिले और साथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो होनी चाहिए वुमेन स्टडीज़ के लिहाज से और उसका फ़ायदा जो है वो आम लोगों में भी जाए। हर जगह पे कुछ चीज़ें बेहतर हैं और कुछ चीज़ें ख़राब हैं, तो कश्मीर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ना यहाँ पे बहुत हालत ख़राब है यहाँ के, जैसे मैंने बताया कि यहाँ के एजुकेशन के लिहाज से वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर में 50% से ज़्यादा हैं, तो वो बहुत अच्छी एक साइन है। उसी तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कहीं पे ज़्यादा वुमेन हैं, कहीं पे कम हैं, लेकिन करीब करीब हालात एक से हैं। जब पूरा डिस्कशन होगा, हम लोग नहीं करेंगे कि क्या थियरी थी, क्या मसला था, कब थियरी आई, कब मेन स्ट्रीम में विमेन थियरीज़ को इंक्लूड किया गया। मेरा यही मकसद है कि हम लोग ये देखेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे क्या मसला है, क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर का जो मसला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी मुल्कों से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये जो सेमिनार है ये तो इसका तो थीम जो है वो है बैलेंस फॉर बेटर। मतलब हम लोग जो हैं, औरतें जो हैं 50% औरतें हैं, तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसमें चंद ही औरत। श्रीनगर के टैगोर हॉल में सहरोजा फोक डांस फेस्टिवल का आगाज हो गया है। गुलिस्तान कल्चरल फोरम की जानिब से मुनाकिद ये प्रोग्राम मरकजी वजारत बराए कल्चर ने मुनाकिद कराया है। कल्चर है कश्मीर का, ट्रेडिशनल कल्चर, फोक डांस हो, रोप डांस, बांड पत्थर, अपने जो नए नस्ल है बच्चे छोटे उन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये एक कोशिश की और करता भी रहूँगा। मैंने पूरा इंडिया में इन बांडों को और दम्बालियों को दिया प्रोग्राम, यहाँ जम्मू में किया, आज मैंने कश्मीर में शुरुआत किया। मैं ये एक कैंपेन चलाता हूँ।
जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा सैयद आबिद रशीद ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में यंग अचीवर्स प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक सिद्दीकी के अलावा यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। जिला तरक्याती कमिश्नर ने तलबा के साथ तबादुल ख्याल किया और इन्हें तालीम हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए अचीवर्स में लैपटॉप भी तकसीम किए। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर में कई सहूलियात का फुकदान है। कस्बे में तवील अरसा कब्ल नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स नाकारा पड़ी हैं। महकमा R&B की जानिब से कस्बे में पोस्ट ऑफिस से लेकर मुरन चौक तक स्ट्रीट लाइट्स पर मोटी रकम खर्च की गई थी, लेकिन मुतल्लिका महकमा की अदम तवज्जुह के बाद ये नाकारा होकर रह गई हैं। जिला इंतजामिया पुलवामा का कहना है कि कस्बे को जाजिब नजर बनाने और स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा चालू करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। ज़िले तरक्याती कमिश्नर से हमारी मौदिबाना गुजारिश है कि इस अहम मसले की तरफ वो तवज्जो दें, क्योंकि शाम होते ही यहाँ चलना फिरना दोबर हो जाता है। कोई भी चीज़ यहाँ जाज में नज़र नहीं है। अगर स्ट्रीट लाइटें चालू हो जाती तो इसके जाज में नज़र बनने में एक अहम रोल अदा करते हैं ये स्ट्रीट लाइट। इम्पॉर्टेंट इशू है कि स्ट्रीट लाइट्स की जो यहाँ पे आउटडेटेड स्ट्रीट लाइट्स हैं या नई लगाने की ज़रूरत है या रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसको भी हम फ़ौरन से पेशतर वी विल टेक ए डिसीजन एंड वी विल मेक श्योर कि शाम के वक्त लाइट्स चलें। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इन तमाम इश्यूज़ के मुतालिक इनका निपटारा टाइम बाउंड तरीके से किया जा सके। उधर बांडीपुरा के बुनकूट इलाके में कायम सरकारी हाई स्कूल में जगह की कमी से स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक अगरचे 6 साल कबल स्कूल के अहाते में इजाफी क्लास रूम्स तामीर किए गए, ताहम इस इमारत को अभी तक स्कूल के हवाले नहीं किया गया। बच्चों का कहना है कि जगह की कमी की वजह से कुछ बच्चों को स्कूल के रसोई घर में पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में बैतुल खला की मुनासिब सहूलियात दस्तियाब नहीं है। उधर महकमे तालीम के एक अफसर का कहना था कि वो स्कूल का दौरा करके बच्चों को दरपेश मुश्किलात को जल्द दूर करेंगे। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। ये स्कूल छोटी छोटी बिल्डिंग बनाई गई है यहाँ पे। ये इसने पूरी सारी लैंड ऑक्यूपाई कर ली है। हम यही डिमांड करते हैं कि हमें डबल स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, जिससे लैंड भी बहुत मिल जाएगी और खेल भी सकते हैं हम यहाँ पे। हमारे यहाँ बहुत मुश्किलात है। हम यहाँ अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ना ही हमारे यहाँ जगह है, ना हम खेल कूद सकते हैं, ना हमारे यहाँ ग्राउंड है, ना यहाँ बिल्डिंग्स है, ना हम क्लास में अच्छे से बैठ सकते हैं। जिन क्लास में 10 बच्चे आ सकते हैं उन क्लास में हम 60-80 एबो बच्चे बैठते हैं, जहाँ यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात। वादी चिनाब में इस मरतबा जबरदस्त बर्फबारी हुई और सयाहती मकाम भदरवा में टूरिज्म शोबे से जुड़े अफराद को बड़े पैमाने पर सयाहों की आमद की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यहाँ के लोग, खासकर सयाहती शोबे से जुड़े अफराद का इल्जाम है कि भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की गैर संजीदगी की वजह से इस मरतबा सयाहती सरगर्मियां मुतासिर हो गई हैं। इनका कहना है कि पहले से तयशुदा विंटर टूरिज्म फेस्टिवल भी मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा भदरवा को आने वाले कई रास्तों से अभी भी बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ सयाहों की आमद नहीं हो रही है और होटल मालिकान और इस शोबे से जुड़े दीगर अफराद को भी नुकसान हो रहा है। हमें फोन आया कि यहाँ स्नो कार्निवल हो रहा है इसी डेट पे। हमने ग्रुप बना डाला, वो यहाँ पहुंचे। उनकी 4 नाइटें थे, 2 नाइट करके चले गए। जाई का रास्ता बंद, आगे थनाला से आगे बंद, इधर गुलडडी का तो नामो निशान नहीं। उनका पहला सवाल था कि भाई आपके स्नो कार्निवल का है, और ये जर्द यहाँ आगे 2 नाइट यहाँ बैठे, अभी तक पैसे नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि धोखा लग गया। हमें धोखा दिया डिपार्टमेंट ने, हमारे तो धोखा लगा उनको, जो यहाँ इतनी दूर से यहाँ पे आके आज वापस चले गए। नहीं टूरिज्म, यहाँ कोई फेस्टिवल नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बिल्कुल का बिल्कुल सिस्टम डेड पड़ा हुआ है। अब ये किस कारणवश पड़ा, ये तो वो गवर्नमेंट जाने या ये टूरिज्म डिपार्टमेंट जाने या BDA जाने, हमें तो इसके बारे में पता नहीं। लोग सारा उनके पास अप्रोच करते हैं, कर रहे लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं। मार्क जा रहा है, अब कब करेंगे समझ। टूरिज्म की नाकामी की वजह से उन्होंने यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं रखा। इस साल उन्होंने बर्फ तो गिरी, लेकिन इसका कोई लोगों को फायदा नहीं हुआ, टोटली नुकसान हुआ। सिर्फ ये टूरिज्म वाले यहाँ पर वादा करते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी टूरिज्म डिपार्टमेंट जाती है कि उन्होंने यहाँ पर कोई मेला नहीं किया। टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे बर्फ की जो चादर, ये मेरे जीवन का पहली बार ऐसा हुआ जो कि मैंने ऐसा कुछ नज़ारा देखा। मेरे ये अद्भुत है, जो कि यहाँ पे मैं तो कहता हूँ सारे जितने टूरिस्ट प्लेस हैं सबसे खूबसूरत यही है, भद्रवा ही। मालूम बंदूक बरदारों के हमले में एक आम शहरी की हलाकत हुई है। महलूक की शनाख्त मोहसिन अहमद वानी के तौर पर की गई है। अभी मजीद तफसीलात का इंतजार है।